فیضلات مسیح یسوع کے عظیم بابرکت و تمام نام میں میرا آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز و خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھال کر رکھا، حفاظت کی اور سلامتی بخشی۔ آئیں میرے عزیز و آج کلام مقدس سے ہم سیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10 باب، اس کی 36 آیت سے ہم سیکھیں گے۔ اور آدمی کے دشمن اس کی گھاڑی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی جان بچائے گا وہ کھو جائے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو میرے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو راست باز کا نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان کو ٹھنڈا پانی ایک پیالہ پلائے گا وہ اس کا اجر ہرگز نہ ہوگا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز و خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا مجھے اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کا زور ہے، اور خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے بندہ متی رسول کے وسیلہ سے لکھ رہا ہے اپنی صلیب۔ ہم نے اپنی صلیب پر غور کرنی ہے۔ وہ صلیب کون سی ہے؟ وہ صلیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلیب کس کو کہا گیا ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے تو انہوں نے اپنی صلیب نہیں بلکہ میرے اور آپ کی صلیب اٹھائی۔ میرے اور آپ کے گناہ جو تھے اس کے کندھے پر، اس صلیب پر ہم نے کبھی غور، کبھی توجہ، کبھی خیال، کبھی فکر کیا ہے کہ یسوع میرے لیے آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے اپنی صلیب اٹھا۔ میرے عزیزو، یسوع کے شاگرد تھے تو یسوع کے شاگردوں کو کہاں کہاں پہ کیسے کیسے مارا گیا۔ میرے عزیزو، یہ پالوس رسول کی طرف دیکھیے تو پالوس رسول کو جب صلیب دینے لگے تو یہ اس نے کیا کہا؟ یسوع کو سیدھا صلیب دیا تھا، مجھے الٹا صلیب دینا۔ پطرس کی طرف دیکھیے تو پطرس نے کہا یسوع کو سیدھا صلیب دیا، مجھے الٹا صلیب دینا، یعنی کہ ٹیڑھا صلیب دینا۔ استفانوس کو جب پتھروں کاٹ رہے تھے تو کیا اس کے منہ میں سے
यीशु 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 निकल रहा था। मेरे अजीजों, जो अपनी जान यीशु के लिए खोने वाला है वो बचाएगा, वो बचाएगा। नहीं तो मेरे अजीजों, मेरी और आपके लिए वो जगह है, वो ठिकाना है जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, आज सलीब का मतलब हम जान लें, ये नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हम शराबनोशी भी करते हैं, हम दगाबाजी भी करते हैं, हम गुनाह में भी हैं और बुरे कामों में हैं, बुरी इरादों में हैं, बुरी ख्वाहिशों में हैं, बुरे मंसूबों को कायम कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम मसीह नहीं, हम मुखालिफे मसीह हैं। मत सोचें, मसीह का मतलब है मसा होया हुआ। उसके अंदर कोई गुनाह नहीं, उसके अंदर कोई बुराई नहीं, उसके अंदर कोई नशा नहीं, उसके अंदर कोई बुरा मंसूबे के कायम नहीं। वो बुरे लोगों के साथ नहीं बैठेगा, वो दगाबाजों के साथ नहीं बैठेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये सारा इब्लीस का मंसूबा है। दगाबाज के साथ वो यही चाहता है कि ये दगाबाजी करे। गुनाहगार के लिए, जो ज़नाकार है, वो चाहता है कि ये ज़नाकारी करे। जो बेकार लोग हैं, शैतान उनको बेकारी के लिए ले जाता है, उनको दलील देता है और उनकी जिंदगी के अंदर वही काम, वही किरदार, वही मंसूबा कायम करेगा जिस मंसूबे को वो इंसान पहचानता है। अगर झूठ बोलने वाला है तो इब्लीस उसे कहेगा झूठ बोल दे, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई नहीं देख रहा। इब्लीस इंसान की जिंदगी को वीरान करने के लिए आया है, संसार करने के लिए आया है, मारने के लिए आया है। और आप वो उस आग के अंदर जाना, हमेशा की जहाँ पे आग जलनी है, उस तय घड़ी में उसको बंद किया जाना है। आज हमें भी वो चाहता है कि ये मेरे साथी हों, ये मेरे लोग हों, मैं इनका खुदा हूँगा। लेकिन वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। आज हम खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लें, ताकि खुदा की बादशाही मेरे और आप के लिए है, जो आसमान की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना और अपनी जिंदगी को बुझाना, अपनी जिंदगी को आसमान की बादशाही का वारिस बनाना मेरे और आपके लिए बेहतर है। आज अपनी सलीब कौन सी है? दुखों की है, मुसीबतों की है, दगाबाजी से बचने की है, जनाकारी से बचने के लिए है, हरामखारी से बचने के लिए है। वो सलीब है जो मेरी और आपकी निजात है। जब तक हम अपनी सलीब को नहीं उठाएंगे, कांटों से गुजरना, दुख मुसीबत उठाना, मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस के अंदर कि मैं अपनों के घर आया
तो अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल कर लिया मैंने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया। आज हम उस हक को रिसीव करें। मत सोचें कि शराब पीने वाले, गुनाह करने वाले, कोई भी नशे की लानत के नीचे वो मसीह नहीं, वो मुखालिफे मसीह हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुखालिफे मसीह ने भी बड़े मौजे किए, बड़े काम किए, और यीशु को कहने लगा, धोखा देने लगा, लेकिन यीशु उसकी बातों पर गाली बाया और यीशु ने उसकी सिर को कुचल दिया। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी इख्तियार है, हम यीशु के लोग हैं, और उसकी सिर को कुचलना मेरे और आपकी इख्तियार में है। गुनाह पर, बुरे मंसूबों पर, बुरे इरादों पर गाली बाना और अपनी सलीब को उठाना। अपनी सलीब हमेशा की जिंदगी है, तो जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस सीलास जेल के अंदर जिनको बैत लगवाए गए, उन लोगों ने घबराए नहीं। उन लोगों ने बैत खा के फिर यीशु की हजूरी में आए, और जब शाम हुई तो वो प्रश्न करना शुरू कर दी, और सब कैदी सुन रहे थे, सब कैदी सुन रहे थे। और जब पौलुस और सीलास आधी रात के वक्त दुआ करना शुरू की, तो ऐसा एक जलजला, ऐसा तूफान, ऐसा पंछाल आया कि जेल की नींव जो थी वो हिल गई, वो हिल गई। हालेलुया। और पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे। मेरे अज़ीज़ों, जब दरोगा को होश आई तो दरोगा ने क्या किया? देख लिया सब दरवाजे खुल गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, और जेल की बुनियाद हिल गई है, ताले टूट गए हैं। और क्या हुआ? दरोगा अपने म्यान से तलवार को निकाला और अपने आप को नुकसान देने लगा। पौलुस ने आवाज दी, ऐ नादान, तू क्यों अपनी जान को नुकसान देता है? जाके कैदी गिन ले। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह वहां पे मौजूद था, वहां जेल के कैद खाने के अंदर, जेल की बाहरली साइडों पे, हर दरवाजे पे खुदा के पाक फरिश्तों का पहरा था, ताकि कोई आदमी दौड़ न जाए। और दरोगा को पौलुस ने कहा, जा के अपने कैदी गिन ले। और दरोगा ने चौराहा गिलिया और सब कैदियों को गिन के आया, और गिन कर वापिस आया तो कहने लगा, उनके कदमों पे गिरा और कहने लगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? हमने कहा, तू तौबा कर, तेरा घराना नहीं जात पाएगा। वो अपने घर ले गया उनको, वो अपने घर ले गया, जाकर उनके लिए खाना बनाया और उनको खाना खिलाने की
तवज्जो और कोशिश की। मेरे अज़ीज़ों, जब उसने ये कोशिश की तो क्या देखता हूँ, यूहन्ना ने पौलुस रसूल ने वहाँ पे कलाम किया और उसके सारे घर ने कलाम कबूल कर लिया। और जब खुदा के उन घर ने कबूल कर लिया खुदा के कलाम को, तो फिर क्या, उन सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा की, वो घराना बच गया। आज हम भी जब अपनी सलीब उठाते हैं तो अपने घर को, घराने को, लोगों को, कौमों को, कबीलों को बचा लेते हैं। आज हमें अपनी सलीब उठाने की जरूरत है। अपनी सलीब दुखों की, मुसीबतों की है, कांटों से गुजरना है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, जो मसीह को कबूल कर लेगा, उसके रिश्तेदार, बहन, भाई, बच्चे सब छोड़ने की तवज्जो करते हैं। और जिसको उसने पकड़ लिया, वो उसके घराना को, सबको पकड़ने की तवज्जो करते हैं ताकि ये घर बर्बाद न हो, ये घर आबाद हो जाए। अपनी सलीब उठाएं। अपनी सलीब हमेशा की जिंदगी है और उस जिंदगी के अंदर दाखिल होना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी सलीब पर गौर करें, अपनी सलीब को उठाएं। जो अपनी सलीब उठाएगा, ना वो नशा करेगा, ना वो गुनाह करेगा, ना अबदोई करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना बुराई करेगा, ना अबलीस की बातों में काबू आएगा। अबलीस की बातें वो ही हैं, गुनाह, गुनाह, बुराई, बुरे मंसूबे, नशाबाजी, दगाबाजी, घिनौने काम, बुरे मंसूबे, बुरे इरादे, बुरे ख्याल, गाली गलौज, ये सारा अबलीस का मंसूबा है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, खुदावंद को कबूल करें, और जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आए खुदावंद के पास कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर छिपना बखूर की मानन करे, इब्राहिम ने कहा कि ये तुझी खुदा। मैं तेरा शुक्रगुजार, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। वापस मानी मेरे गार घराना को अपनी पनाह, अपनी लपेट में ले। मुझे अपनी सलीब उठाने के लिए खुदावंद को अकल, दनाई और अपना फाहम दे, ताकि मैं उस सलीब की तरफ बढ़ता जाऊं और उस सलीब को अपने कंधे पे उठाकर दुखों से, मुसीबतों से, उस तंग दरवाजे से गुजर सकूं, ताकि खुदावंद वो हमेशा की बादशाही का दरवाज़ा है। बाप तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुने कुरान। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम
इजहार की यकूब की खुदा में तेरा शुक्र गुजार। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस सुनिए। बापसमानी तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं, अबलीस के मंसूबे टूट जाते हैं, अबलीस की करते शर्मिंदा होती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया, मेरे कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, अपना देना, जख्मी हाथ बढ़ाना, बरकत से लबरेज करना, रूह कुदस से मामूल करना। यीशु आज का तेरे हसूर चिकन बखुर की मानंद है। इब्राहिम इजहार की यकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन, अबलीस की चालाकियों को बंद करे खुदावन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाप आसमानी सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को बंद करना। आए खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी सलीब के नीचे रहूं। और खुदावन तू मेरे घर घराने को, बच्चों को, आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला को अपनी पनाह में रखना। मेरे कलीसिया को अपनी पनाह में रखना। सुनने वाले लोगों को बरकत देना। वापस मानी जितने इस दुआ को सुने वो शिफा पाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, अपनी सलीब को उठाएं और तेरे हसूरी में बढ़ते जाएं। ये सुनासरी मैं उन बीमारों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदल दे। आए खुदावन को अपना हाथ बढ़ा, खुदावन को अपनी पाखुरों को बेचे, खुदावन को अपना देना हाथ बढ़ा। आज का तेरे हसूर जितना बखूर की मानंद करे। इब्राहिम, इजहाक, यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदल दे, अबलीस के मंसूबों को बंद कर। हालेलुया। आए खुदावन मैं उन बेटियों को तेरे मंसूबा पर लाता हूँ जिन बेटियों को औलाद के पास औलाद नहीं, बे औलाद हैं, उनके रहम को बंद किया है। खुदावन तुम के रहम को जारी कर दे ताकि वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर पेट का आजाद औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरे नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हसूर शुक्र बखुर के मानंद ठहरे। वापस मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, अदलिया के साथ साथ रहना, तमाम खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना, वापस मानी तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, बुरे इरादों से बचाना, पाक फौज के साथ साथ रहना, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना है खुदावन। अबलीस के तमाम मंसूबों को बंद करना, अबलीस की सारी चालाकियों को कुचलना। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की मानंद ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरे हो फिर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को
माफ़ करते हैं तो हमारे कसर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुतसिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।